Hello students, welcome to Shatabdi's classes. Today I'm here with lots of energy because was wonderful for me. Navratri was wonderful. I hope all of you have also enjoyed Dashera and Durga Puja, right? So let's now concentrate on study. Okay, I have come with a lot of good news today. So before that, I want to ask you a question. Are you trying to prepare for Olympiad and are you wondering like how are you going to prepare for Olympiad? What kind of question, what level of question, how difficult kind of questions you need to prepare? Okay. What are the tricks to solve those questions? Are you wondering about that? Okay, don't worry. I'm here to help you out on that. Okay, definitely for Olympiad, the level of preparation is little high compared to your regular school exams. Okay, so you need to prepare each and every chapter in detail. You need to have an in-depth knowledge of every chapter, and the kind of questions that you need to prepare has to be really complicated and tricky. But yes, if your basic is clear, you will be able to answer them. Okay, so today I'm going to teach you a chapter which is an example chapter that how should you prepare for your Olympiad, specifically for science. And in the next session also the same chapter will continue, and in the third day I'll give you some questions answer discussions. Okay, so the kind of questions you need to prepare for the exam that I'll prepare for you, I have already prepared, so that question answers will be shared in that session. All right students, so let's start. And I told you that I have a great news for all of you. So let's share that news. This news is that I am preparing a complete Olympiad guide for all of you. Okay, for science in my institute, which is Shatabdi's classes. So all the links of this app is there in the description. Whichever part of India you are from, you can definitely join the app and you can join my online class. So I'm going to give live classes for Olympiad. I'm going to give detailed discussion of every topic, and I'm going to share a lot of study notes and question answers with you and discuss these kind of question answers in the live classes. So feel free to join that. And also you can get some free study materials over there. So feel free to browse that. All the links are there in the descriptions. Okay, so let's start with today's topic. All right. So the topic is microorganism. Micro means, all of you know, very small in size. So microorganism means something which is really small in size, very tiny that you cannot see them in your blanket eyes. Okay, so tiny that you have to use some device like microscope, or even if you can see them, you cannot see the entire structure in blanket eyes. You can see a little bit of a little part of a small part of that particular microorganism. Okay, so let's understand about microorganism, but for that let's go on a tour. So the first tour is in my kitchen. Okay, so in my kitchen there's a fridge, and in the fridge I kept a box of bread. Okay, now this is looking like that. Should I eat it? What do you think? Should I eat it? I shouldn't, right? Why? There is something on the bread. What do we call them? We call them bread mold. Okay, तो आप सबने देखा होगा घर पे अगर आपने ब्रेड बहुत दिन तक रखा है, ओपनली रखा है, प्रॉपरली क्लोज करके नहीं रखा है, तो उसमें ऐसे कुछ ग्रो कर जाता है अचानक से. कहाँ से आता है वो हमें नहीं पता. हमें so now today we are going to learn what is it actually called. It is actually called Rhizopus stolonifer, which is a species of bread mold. Okay, तो ये Rhizopus stolonifer क्या है? ये एक्चुअल में इफ यू सी विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप वो कैसे दिखता है? वी एक्चुअली जस्ट सी द स्पोर्स ऑफ इट. ऊपर से उसका सिर्फ स्पोर्स ही दिखता है, लेकिन उसका एक्चुअल पार्ट ऐसे दिखता है जैसा स्क्रीन पे मैंने शो किया है. ओके, सो दिस इज एक्चुअली अ fungi which is known as a microorganism. So fungi is a microorganism. So हम जो ब्रेड मोल्ड देखते हैं वो एक्चुअल में फंगाई है और फंगस है. आपने सुना होगा कि फंगस लग गया है, इसे फेंक दो, मत खाओ, इट इज नॉट एडिबल. ओके, सो इट इज बेसिकली अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म. प्लांट के जैसे ही दिखता है इफ यू सी विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, बट इट डजंट हैव अ थिंग व्हिच इज कॉल्ड क्लोरोफिल. ओके, सो प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, बट
फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है. दैट मीन्स दैट दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. सो फूड के लिए उनको किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, राइट? सो यही फूड उनको कहाँ से मिल रहा है? खाने के ऊपर. जब वो ग्रो कर रहा है वहां से वो अपना फूड एंड न्यूट्रिशन ले रहे हैं, राइट? सो फंगाई कैन बी यूनिसेलुलर. ओके, एक सेल ही रह सकता है उनके पूरे बॉडी में, like yeast, like mildews, or it can be multicellular like molds, like mushrooms. Okay, mushroom multicellular hai, isliye we can see them in our blanket eyes. Okay, so now fungi is present everywhere from desert to cold region. हर जगह पे आपको फंगाई या फंगस मिलेगा. बट कहाँ पे वो बेस्ट ग्रो करते हैं? दे ग्रो बेस्ट इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस. ओके, सो वार्म एंड मॉइस्ट, इसीलिए हम कहते हैं ना कि जगहों को ड्राई रखना चाहिए. वी शुड कीप आवर वॉशरूम, कीप आवर रूम क्लीन एंड ड्राई. व्हाई क्लीन एंड ड्राई? बिकॉज क्लीन एंड ड्राई अगर होगा तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाएंगे उतना ज्यादा, बिकॉज दे नीड मॉइस्चर टू ग्रो. मॉइस्चर जहाँ पे होगा वहां पे वो सबसे बेस्ट ग्रो करते हैं. ओके, so they grow best in dark, warm and moist places. All right, so fungi are non-green plants, so as they cannot grow their own food, है ना? तो उनको किसी पे डिपेंड करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला था. तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है इसको पैरासाइटिक या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है. ओके, बट दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ओके, एंड सेल ऑर्गेनिम्स एंड अ सेल वॉल. ओके, किस टाइप का रेस्पिरेशन करते हैं, किस टाइप का ब्रीदिंग करते हैं? इट कैन बी एरोबिक, इट कैन बी एनारोबिक. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, बट मोस्टली जैसे कि ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. एंड इन द नेक्स्ट सेशन विल लर्न कि इस एनारोबिक रेस्पिरेशन से हमें क्या फायदा होता है. ओके, माइल्ड्यू आर पैरासाइटिक. ओके, फंगाई का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एक फंगाई से दूसरे फंगाई कैसे बनता है? इट इज नॉट लाइक द रेगुलर रिप्रोडक्शन लाइक ह्यूमन बीइंग, जहाँ पे एक मेल और एक फीमेल गैमेट होगा एंड देन का फ्यूजन होगा एंड उससे रिप्रोडक्शन होगा. नो, दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, which is by budding or by binary fission or fragmentation. So budding का मतलब क्या होता है? बड, जैसे कि उनके बॉडी में एक आउटग्रोथ क्रिएट होता है एंड वो आउटग्रोथ धीरे धीरे एक कंप्लीट फंगाई बनता है एंड देन धीरे धीरे वो अपने आप को पेरेंट बॉडी से अलग कर लेता है. ओके, विच इज कॉल्ड बडिंग. फ्रैगमेंटेशन मतलब बॉडी फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है एंड वो एक एक फ्रैगमेंट एक सिंगल सिंगल फंगाई बन रहा है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड. So in detail about this reproduction, we'll learn in reproduction chapter, but I'm just giving you a brief about it. Okay, that what it is, actually how do it reproduce. So mostly they reproduce asexually by budding, by fragmentation or by fission, binary fission. Okay, also they have spores. Okay, dust के जैसा उनका spore होता है कुछ. ये spores एयर में फैल जाता है एंड उससे इसके डिस्पर्सल से भी न्यू फंगाई जनरेट होता है. ओके, so under favorable condition fungi can also produce sexual reproduction. Yeah, they can also have a male and female gamete and normal reproduction can also happen, but most of the time it is asexual reproduction. Now, what are these green layers? So we have now come to visit a sea and a lake. Okay, so in this land, a beautiful green layer and a beautiful little bit of yellowish layer we can see. Okay, you must have seen these kind of layers in your walls also during rainy season. ऐसा होता है ना कि या फिर पुराने घर में आपने देखा होगा उनके walls पे बहुत ही ब्राउन या ग्रीन या येलो कलर का एक लेयर होता है, एकदम जैसे कि वेलवेट के जैसे दिखता है. किसी ने उसको ड्रेस पहना है ऐसा लगता है. एंड पॉन्ड्स में तो आपने देखा ही होगा, बहुत दिनों से कोई पॉन्ड क्लीन नहीं हुआ है तो वहां उसके ऊपर हम ग्रीन लेयर्स देखते हैं. तो इसको क्या बोलते हैं? हैव यू एवर thought of trying to understand the name of this particular thing? Yes, it is algae. So what is algae? Algae is also a microorganism. The term algae refers to a simple plant-like organism. क्योंकि a green color इसमें available है, that means it has chlorophyll and it has cell wall. Okay, so they are found in moist areas generally. जहाँ पे बहुत moist area है, बहुत ज्यादा rainfall होता है, वहां पे ज्यादा दिखा जाता है. Some algae are attached to rocks also. आपने देखा होगा पुराने पत्थरों के ऊपर, rocks के ऊपर algae पाए जाते हैं और पेड़ पौधे के ऊपर भी मिलता है. Barks of the plants, barks of the trees. Okay, or it grows within plant and animal also.
सो दे शेयर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर्स. सो अगर वो कोई प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है तो उस प्लांट से वो न्यूट्रिशन ले रहा है, बिकॉज इट डज नॉट हैव द रूट्स एंड ऑल दोस थिंग्स फॉर लाइक प्लांट्स, बट इट कैन डू फोटोसिंथेसिस. क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो चीजें चाहिए, उसको जो पानी चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, उसके लिए डिपेंड कर सकता है ऑन द प्लांट इट इज ग्रोइंग. Okay, so it is a symbiotic relationship because it also helps the plant to do nitrogen synthesis and all those things. Okay, now these algae also can be unicellular, okay, or multicellular, quite big size. ये algae actually हम microorganism इसको नहीं बोल सकते हैं. Some algae are microscopic, so they are a part of this microorganism thing, but mostly algae can be quite big shape also compared to other or like fungi or bacteria or viruses. Okay, so the size varies from 1 micron to 50 meter. Microscopic algae के कुछ example है. Be very minute and सारे examples please try to remember at least the examples, because ये ओलंपियाड के लिए बहुत ही जरूरी है. जैसे कि स्पाइरोगायरा, Chlamydomonas, Volvox. Okay, these are the microscopic algae. Okay, now seaweed is an example of big algae. Okay, now unicellular algae come with in a great variety of shapes. उनका shapes भी अलग अलग होता है, जैसे कि rod shape होता है, spherical shape होता है, spindle shape होता है, club shape होता है. Micro and multicellular occurs in various forms such as filament or branches. Okay, and Volvox has a colony. Some have their own colony. Can you see this Volvox colony over here? Colony of Volvox, daughter colony, and all those things. Okay. So algae का सिर्फ green color ही नहीं होता है, अलग अलग color होता है. Why? You must have seen like this mustard green algae. You must have seen green algae. You must have seen black algae as well. Why? Because of different kind of pigments that they contain. ये जो पिगमेंट होता है ये इनका ग्रीन पिगमेंट को मास्क कर देता है, बट क्लोरोफिल दे हैव. So on the basis of pigments present, they can be classified as green algae. Green algae जैसे कि Spirogyra, red algae जैसे कि Gelidium, brown algae जैसे Fucus. Okay, so ऐसे जो examples दिए हुए हैं, please feel free to remember them, क्योंकि फिर ये question में आता है कि sometimes you might get confused between algae and fungus. कोई fungus का name है, algae का name है, उसमें confuse मत हो जाना. So you need to remember these names. Now ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड हम सब ने बैक्टीरियाज एंड वायरसेस के बारे में बहुत सुना है ना. तो यहाँ पे आई कैन सी देयर इज अ सिक चाइल्ड, उसको बहुत ज्यादा फीवर है. नाउ व्हाट द फर्स्ट थिंग द पेरेंट्स नीड टू डू, दे नीड टू गेट हिम चेक्ड अप, ब्लड टेस्ट करवाना है, एंड प्रोबेबली ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में the doctor will find out there is a viral infection or a bacterial infection. Now what is this bacteria? Bacteria इज डेफिनेटली माइक्रोस्कोपिक. हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा. इट इज डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट इज अ सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. Okay, so they have cell wall because they are considered to be related to more plants than animal. Okay, so they are included in the first kingdom of living organism, which is called Monera. Monera is earth का first living organism है, and bacteria is from the Monera kingdom. Okay, they are the simplest living organism. ह्यूमन के जैसे उनके बॉडी में इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सिंपल है उनका बॉडी स्ट्रक्चर. एंड दे हैव डिफरेंट साइजेस. 0.2 से 100 माइक्रोन तक उनका साइज हो सकता है. माइक्रोन मतलब 1 मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट, मतलब कितना छोटा. वी कैन नेवर सी इट इन ब्लैंकेट आइज, वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप. ओके, सो डिफरेंट शेप्स होता है इसका, जैसे कि रॉड शेप होता है, जैसे बैसिलाई, एग्जांपल इज बैसिलस. ओके, दे कैन बी स्फेरिकल. तो जो बैसिलाई बैक्टीरिया है, इसके वजह से ट्यूबरक्यूलोसिस, डिप्थेरिया, टिटेनस, लेप्रोसी, ये ऐसे ऐसे टाइप के डिजीजेस होते हैं. डिजीज के बारे में नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे. स्फेरिकल वंस आर कॉल्ड कॉक्काई और कॉक्कस. एग्जाम्पल क्या है? कॉक्कस स्टेप्टोकॉक्कस न्यूमोनी. तो स्टेप्टोकॉक्कस न्यूमोनी क्या करता है? न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है. स्पाइरल शेप को बोलते हैं स्पाइरिला. कॉमा शेप को बोलते हैं विब्रियो. जैसे कि विब्रियो इज कॉमा शेप. इस कॉमा शेप बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी. सो कॉलेरी से कॉलेरा, कॉलेरा होता है. ओके, सो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, बट यू नीड टू रिमेम्बर द नेम. बैक्टीरिया एंड वायरसेस में भी बहुत सारे कंफ्यूजन होता है. तो बैक्टीरिया के नेम्स एंड अलग अलग डिजीजेस के नेम यू नीड टू रिमेम्बर. ओके,
तो उसके भी बहुत सारे वेज है, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट. तो बैक्टीरिया का अलग अलग शेप्स जैसे मैंने डिस्कस किया, कॉकस, विब्रियो, बैसिलस, स्पाइरलम. ओके, एंड हर एक का एग्जांपल्स भी मैंने बताया. नाउ बैक्टीरिया, उसका आउटर मोस्ट एक कवरिंग होता है which is called cell wall because it is more related to plants compared to animals. Okay, it has nucleus but it is not well developed, but chromosomes are found in scattered way. Jelly like substance cytoplasm is present in the cell, and the cell is enclosed with a gelatin like capsule. Okay, so bacteria have flagella, thread like structure. It helps in the movement. इनका जो ये flagella है ये इनकी movement में help करता है. And it has a parasitic और saprophytic nutrition, क्योंकि वो host के body में ये भी रहते हैं and host के body से वो nutrition को collect करते हैं for their growth and reproduction. Okay, they might also live in symbiotic relationship with plants. Now coming to virus. virus के बारे में I think during this COVID period all of us have learned कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सबके पास है, फ्रॉम अ 5 year old टू 85 year old पर्सन. ओके, तो वायरस के बारे में मैं और नया क्या बताऊं, आप सब अच्छे से जानते हो. इट इज ऑल्सो अ टाइनी स्मॉलर सेल. बट वायरस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इट इज बेसिकली एक्टिंग एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ नॉन लिविंग एंड अ लिविंग थिंग. इसे हम लिविंग भी बोल सकते हैं, नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कहाँ पे वो है. जब वो इंडिपेंडेंटली है बाहर, कोई होस्ट के बॉडी के बाहर है, तो इट एक्ट्स लाइक अ नॉन लिविंग. इट डजंट चेंज, रिस्पॉन्ड टू द चेंज ऑफ द सराउंडिंग. बट जब भी वो किसी होस्ट के बॉडी के अंदर जाता है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई वायरस आ गया, देन इट स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग. 1 से 2, 2 से 10, 10 से 1000 वायरस रिप्रोड्यूस करना चालू करता है. दैट मीन्स विच इज अ बिहेवियर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो तभी वो हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन भी लेता है, एनर्जी भी लेता है, लेके रिप्रोड्यूस करते रहता है. एंड बिकॉज इट इज टेकिंग एनर्जी फ्रॉम आवर सेल, आवर बॉडी, इट इज हमारे बॉडी का जो सेल है, होस्ट सेल्स है, वो धीरे धीरे बर्स्ट कर जाता है बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स रिड्यूस. इसकी वजह से द पर्सन में फॉल इल. तो वायरसेस कैन इन्फेक्ट, बैक्टीरिया कैन इन्फेक्ट प्लांट एंड एनिमल एंड ह्यूमन. ओके, तो वायरस जब कोई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसको बैक्टीरियोफाजस बोला जाता है. ओके, नाउ वायरस कंसिस्ट ऑफ these different parts. It has these spikes, nucleoli present in the virus chromosome. It may be linear or circular. Okay, which depend on the degree of coiling. Okay, वायरस में डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, बट नेवर द बोथ. ओके, डीएनए कंटेनिंग वायरसेस को बोलते हैं डीऑक्सी वायरसेस एंड आरएनए कंटेनिंग को बोलते हैं राइबो वायरसेस. ओके, तो वायरस के बाहर जो एक कोट है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं. ओके, विच इज अ प्रोटीनेसियस कवरिंग अराउंड द वायरस विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डैमेज. तो हम जब हैंड वॉश करते हैं, हमें जो बार बार ये बोला जा रहा था वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड, क्यों बोला जा रहा था? इससे क्या वायरस मर जाता है? नो, इट एक्चुअली रिमूव्स द आउटर लेयर ऑफ दिस वायरस, जिसकी वजह से जो उसको एक्चुअल में प्रोटेक्शन देता है. एंड ये आउटसाइड का लेयर अगर डैमेज हो जाता है, निकल जाता है बिकॉज ऑफ वॉशिंग द हैंड, उससे क्या होता है, उसका रिप्रोड्यूस करने का पावर भी कम हो जाता है. ओके, सो जब ये सिंगल वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है, विच डजंट हैव द पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, देन हम इजीली उसके साथ फाइट कर सकते हैं, राइट. एंड वो 2 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारा काउंट जब बढ़ जाता है, देन उनका पावर बढ़ जाता है. Isn't it? So if you are fighting against a team which has just one person in the army, so it becomes for your team who has more than one person to attack that team member, right? But if that person have thousands of army, then it will be difficult for you. तो वैसे ही ये वायरस का जो आउटसाइड का लेयर है, इसको अगर आप निकाल दो तो वो एक वन मैन आर्मी बन जाता है. ओके, नाउ हैव यू हर्ड अबाउट मलेरिया? How does it happen? Because of a mosquito? No, mosquito is just a carrier actually. It happens because of a protozoa known as Plasmodium falciparum. Remember the name. Okay. Now, what is protozoa? It is also a microorganism. It is unicellular organism that shows characteristics of more of an animal. Bacteria जैसे थोड़ा plant-like structure दिखा रहा था, ये animal-like structure दिखा रहा है. But they can contain chlorophyll that might perform photosynthesis. Okay.
In them also cell wall is lacking, जैसे कि यूग्लिना. ओके, एंड दे ऑल्सो शो वेराइटी ऑफ शेप्स, जैसे कि एमीबा. एमीबा का शेप कैसा है? इरेगुलर शेप है एमीबा. ओके. पैरामीशियम स्लीपर के जैसे शेप है. देखो स्लीपर के जैसे दिख रहा है पैरामीशियम. ओके. सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन. एक ही जो सेल है वही सेल सारा फंक्शन परफॉर्म करता है. जस्ट इमेजिन. तो दे आर टर्म्ड एज एसेलुलर. एंड चलने के लिए उनका वो फ्लैजेला यूज करते हैं, या फिर स्यूडोपोड यूज करते हैं, या सीलिया यूज करते हैं. स्यूडोपोड मतलब एमीबा का देखा होगा. स्यूडोपोड चलने के लिए वो थोड़ा सा ऐसे ग्रो कर जाते हैं थोड़ा आगे अपने टारगेट के तरफ. ओके. सो विच इज कॉल्ड स्यूडोपोड, विच इज नॉट एक्चुअली अ लेग लाइक थिंग. सो वो एक ही सेल है जिसमें फ्लैजेला है, सीलिया है, जो कि उनको चलने में या लोकोमोशन में हेल्प करता है. सम प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, एंड अदर लिव इन सॉइल. Some are parasite that lives in the bodies of other organisms, including human, like amoeba, Giardia or Paramecium. There are some examples of protozoa. Okay. So हमने आज के चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा. कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा? हमने पढ़ा फंगाई के बारे में. ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल हमने देखा था. उसके बाद हमने एल्गी देखा, जो ग्रीन लेयर्स हमें दिखता है या ब्लैक लेयर्स दिखता है वॉल पे या लेक्स में या पॉन्ड्स में. एग्जैक्टली. उसके बाद हमने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में, वायरसेस के बारे में, एंड प्रोटोजोआ के बारे में. So these all are called microorganism, a part of microorganism family. Microorganism means you cannot see them in your blanket eyes. You have to use a microscope to view them. ओके. सो डिटेल्स में अगर नोट्स नहीं लिया है आपने, तो विजिट माय ऐप. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. वहां पे ये नोट्स अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री. नोट को डाउनलोड करो एंड अपने कॉपी में भी नोट करो. एंड डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर द नेम्स which belong to each of the families. Do not get confused in that. Okay, so you need to know all these names, remember all these names. Okay, in the next chapter I'll discuss that these microorganisms, how they help us also in different ways. So microorganisms सिर्फ diseases cause नहीं करते, ये help भी करते. तो कैसे help करते हैं उसके बारे में हम next session में जानेंगे. And also we'll learn about different diseases that occur because of this microorganism, जो हमने आज देखा है थोड़ा बहुत, but हम detail में discuss करेंगे. Okay, and in the next session I'll discuss the questions related to this chapter which are relevant for Olympiad exam specifically. All right students, so अच्छे से पढ़ाई करो. आई एम श्योर हम सब साथ में मिलके ओलंपियाड क्रैक कर देंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मेरे ऐप के बारे में है, जो आपको और भी बेटर तरीके से हेल्प कर सकती है एंड कंप्लीट प्रिपरेशन दे सकती है एट अ वेरी लो कॉस्ट. सो बी देयर एंड थैंक यू so much for today. We'll meet you in the next session. Bye bye.